جی ہاں، سب سے پہلے بات کریں گے عید الاضحیٰ کی۔ ملک میں آج عید الاضحیٰ کی نماز بے حد سادگی کے ساتھ ادا کی گئی۔ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی محدود ہو کر رہ گئیں۔ عام حالات میں جہاں عید کے موقع پر اکٹھے ہو کر تمام لوگ عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے، وہیں کورونا کے زیر اثر عید الاضحیٰ کے موقع پر سناٹا پسرا رہا۔ لوگوں نے عید الاضحیٰ کی نماز مسجدوں کے علاوہ گھروں میں ہی ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کورونا کے خاتمے اور ملک کی سلامتی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئیں۔ عید الاضحیٰ کو عید قرباں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ وہیں جموں کی مساجد میں آج عید کے موقع پر ویرانی چھائی رہی۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی نماز عید ادا کر کے امن و خوشحالی کی دعائیں کی۔ عید کو جموں کی ہر مسجد میں رونق دیکھی جاتی تھی۔ آج جموں میں سڑکیں ویران پڑی رہیں۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے چلتے لوگوں نے فون پر ہی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ نیوز 18 سے بات چیت میں لوگوں نے کہا کہ وبا سے نجات کے لیے انہوں نے اللہ سے خاص دعائیں مانگی ہیں۔ عید کی نماز ادا کی مسجدوں کے اندر ہی تھوڑے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے گھروں کے اندر اپنی نماز ادا کی، کچھ لوگوں نے اپنی چھتوں کے اندر۔ نماز تو ادا ہو گئی لیکن جو چہل پہل ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن ہم اس کو کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک مجبوری ہے اور یہ صرف ہمارے لیے خاص نہیں، یہ سب انسانیت کے لیے خاص ہے۔ تو ہم تو اس میں خوش ہیں کہ بھائی اللہ جس حال میں رکھے گا ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ ہمیں اس میں کسی کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس موقع پر ہم نے دعائیں کی اللہ پاک سے کہ اللہ اس تمام پریشانی، خاص طور پر اس کرونا کی جو بیماری ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر یہ دعا کی گئی کہ اللہ ہم سب کو اس سے چھٹکارا دے دے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں ہر سال مسجدوں میں عبادت اور شہروں میں رونق ہوا کرتی تھی، وہیں اس بار کورونا وائرس کی وجہ سے سڑکیں سنسان اور مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ لاک ڈاؤن ہونے کی بھی وجہ سے لوگوں نے آج اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کی اور اللہ میاں سے دعا کی کہ کورونا وائرس کی یہ گھمبیر بیماری پورے دیش سے جڑ سے ختم ہو جائے۔ ویڈیو جرنلسٹ چاند کے ساتھ کومل سنگھ، نیوز 18 جموں۔ اور وہیں کووڈ وبا کے چلتے سری نگر شہر میں عید الاضحیٰ پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ کئی حساس علاقوں میں سیکیورٹی فورس کو تعینات کیا گیا۔ کچھ مقامات پر خاردار تاروں سے سڑکوں کو بند کیا گیا۔ کسی بھی جگہ باجماعت نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں تھی۔ سری نگر عیدگاہ میں ویرانی چھائی رہی۔ درگاہ حضرت بل اور شہر کی دیگر بڑی مساجد میں بھی نماز نہیں ہوئی۔ بیشتر لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کی۔ کچھ محلوں کی مساجد میں بھی چند مصلی پہنچے ضرور۔ لوگوں نے کورونا سے نجات کے اس موقع پر خاص دعائیں مانگی۔ بہت اچھے طریقے سے ہم نے نماز پڑھی ہے۔ خصوصاً ہم نے آج کے اس ضحیٰ کے موقع پر دعا کی ہے کہ پروردگار عالمین کی طرف سے ہم پہ جو آج ایک آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دربار میں ہم نے دعا مانگی رب تبارک و تعالیٰ سے اس ضحیٰ کے موقع پر کہ پروردگار عالمین ہمیں اس قحط و وبا سے نجات دے، تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ جائے، جو اس میں گرفتار ہوئے وہ بچ جائے، اور جو اس وقت ٹھیک ٹھاک ہے وہ اس سے اچھے ٹھیک ٹھاک رہے۔ عالمی انسانیت کے لیے بھی ہم نے دعا کیا، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ باقی بائراداری نے اسلام کو کی سادگی سے عید منائے، تاکہ اور اپنے دعاؤں میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے دے، اور یہ عید ہم یہی تاکید کرتا ہے کہ عید سادگی سے منائے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہاں سری نگر شہر میں آج سخت ترین پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، اور کسی بھی جگہ اجتماعی عید نماز کی اجازت نہیں دی گئی تھی، چاہے ہم بات عیدگاہ کی کریں یا چاہے درگاہ حضرت بل کی بات کریں یا باقی جو درگاہ یہاں پہ سری نگر شہر میں ہیں جہاں پہ عید کی نماز ہوتی تھی، وہاں پہ آج سناٹا چھایا رہا اور وہاں پہ عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اگر ہم بات کریں یہاں عیدگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے تھے، تاہم آج یہاں ویرانی چھائی رہی۔ کل ملا کے دیکھیں تو جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں اور جو محلے کی مسجد ہیں ان میں ہی نماز ادا کی اور دعا یہی کی کہ کشمیر کو اس وبا سے نجات ملے۔ فیروز وانی کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو، سری نگر۔
ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों में बड़ी तादाद में जमा होते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना की वजह से ईदगाहों में सन्नाटा पसरा रहा। कानपुर की बड़ी ईदगाह पर तकरीबन 2.5 लाख लोग एक साथ नमाज अदा करते थे, लेकिन आज यहाँ भी सन्नाटे का राज रहा। बड़ी ईदगाह से यहाँ के हालात का जायजा लिया हमारे साथी संदीप सविता ने। आज बकरीद का त्यौहार है और इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर की बड़ी ईदगाह पर। यह ऐतिहासिक ईदगाह जहां पर लाखों लोग आज के दिन नमाज अदा करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से यहां पर आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक सामूहिक नमाज पढ़ना मना है और जिसके तहत सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पर जिस जगह लाखों लोग आज के दिन इस समय नमाज पढ़ते थे, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं, पुलिस लगा दी गई है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के बाहर भी जो है जो लोग दुआ करने आते थे उनके भी पाबंदी लगा दी गई है, उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि आज शनिवार का दिन है, उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन यानी कि वीकेंड लॉकडाउन भी लागू है, इसलिए आज लॉकडाउन भी है। इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सादगी से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। और इस ऐतिहासिक ईदगाह का जो नज़ारा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज देखने को मिल रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन है और ईद उल अज़हा का त्यौहार भी। ईद उल अज़हा को लेकर हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी की थी। इसको लेकर इंतज़ामिया ने सख्त इंतजाम किए। इसी के पेश नज़र कानपुर शहर में पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई। शहर के परेड चौराहे का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। आज वीकेंड लॉकडाउन है और आज बकरीद का त्यौहार भी है। वीकेंड लॉकडाउन के लिए पुलिस की तैनाती, भारी फोर्स तैनात की जाती है, लेकिन आज के दिन कानपुर में पीएसी को भी तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि पीएसी की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, पीएसी की तैनाती यहाँ पर है और शहर के हर चौराहे, शहर के हर इलाके में पीएसी की तैनाती की गई है। साथ ही पीएसी के साथ ही आज विशेष तौर पर यहाँ पर आरएएफ भी आई है। आरएएफ की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 3 गाड़ियाँ आरएएफ की यहाँ पर परेड चौराहे पर हैं। इसके अलावा कानपुर के अलग अलग इलाकों में भी हैं, आरएएफ की तैनाती की गई है, जिससे कि गाइडलाइन का पालन कराया जा सके, लॉकडाउन का पालन कराया जा सके और उसी गाइडलाइन के मुताबिक ही त्योहारों को मनाने के लिए लोगों को अपील की जा सके और सख्ती बरती जा सके थे। वहीं कानपुर शहर के अलग अलग इलाकों में एसएसपी खुद मुआयना कर रहे हैं और थानों में जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जिससे गाइडलाइन का पालन के अनुसार ही बकरीद का त्यौहार मनाया जा सके। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आज पूरे मुल्क में सादगी के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कोरोना की वबा के चलते ये दूसरी ईद ऐसी सुनसान नजर आ रही है। अमरावती में भी ईद उल अज़हा सादगी से मनाई गई, जहां फर्जंदान तौहीद ने कोरोना से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से बताए गए अहकामात पर अमल करते हुए अपने घरों में ही नमाज ईद अदा की। शहर की सभी ईदगाहों पर सन्नाटा छाया रहा। साथ ही कोरोना से पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए भी खास दुआएं मांगी गईं। कोरोना वायरस की नाजुक हालात में और मुसीबत ज़दा वक्त में पूरे आलम इस्लाम ने और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हुकूमत की दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से सादगी के साथ जिस तरह ईद उल फित्र रमज़ान की ईद मनाई थी, उसी तरह ये ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद भी उसी सादगी के साथ मनाई और हुकूमत की तमाम गाइडलाइंस को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत की तमाम गाइडलाइंस पर अमल करते हुए जिस तरह नमाज के लिए जमा होने की हुकूमत ने इजाज़त दी, जितने लोगों को पढ़ने की इजाज़त दी, उतने लोगों ने जमा होकर के सादगीपूर्ण और इस ईद के त्यौहार को मनाया है। मैं अपनी जानिब से पूरे आलम इस्लाम को और मेरे मुल्क के तमाम बिरादरान वतन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम ही समाज वर्ग और तमाम ही ज़ात के लोगों को इस ईद की मुबारकबाद देता हूँ।
वहीं मालेगांव शहर में भी नमाज ईद उल अज़हा नहायती पुरसुकून तरीक़े से अदा की गई और उम्मत मुस्लिमा अपने अपने घरों गलियों मोहल्लों के हॉल में ये नमाज अदा करते देखे गए। ईद उल अज़हा के मौके पर सुबह सवेरे रास्तों पर ईदगाह जाने के लिए उम्मत मुस्लिमा की जो भीड़ और हुजूम नज़र आता था वो इस साल कहीं नज़र नहीं आया। शहर की सड़कें सुनसान थीं, पुलिस की सख्त तैनाती थी, चौक चौराहों पर पुलिस एहलकार खड़े थे। शहर की कदीम और सबसे बड़ी लश्कर वाली ईदगाह पर भी पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की। इस तरह से लखनऊ शहर की ईदगाह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली की इमामत में 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी और कोरोना से निजात के लिए यहाँ खास दुआएं मांगी गई। ये हफ्ता आपके लिए होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि इस बार अमेज़ॉन आपके लिए लाया है एक से बढ़कर एक फिल्में, जिसमें हैं शकुंतला देवी के जरिए विद्या बालन के जलवे दिखाने की बारी, तो वहीं विल स्मिथ दिखाएंगे अपनी बेहतरीन अदाकारी। तो हो जाइए तैयार, इस शनिचर और इतवार को है मनोरंजन की बहार। ईद उल अज़हा के मौके पर हर साल लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना ने लोगों की तादाद को दूध करके रख दिया। जयपुर की जामा मस्जिद और ईदगाह में महज 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। जयपुर की जामा मस्जिद से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र पर हर साल जहां हज़ारों लाखों लोग एक साथ नमाज अदा किया करते थे, वहां पर बहुत ही मुख्तसर से लोगों ने नमाज अदा की है। जमातुल विदा की नमाज इसी जामा मस्जिद से होती थी, जिसका मेंबर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ कमोबेश 7 से 8 लाख लोग एक साथ इज्तमाइयत के साथ जमातुल विदा की नमाज करते थे और लाखों की तादाद में ही यहाँ पर ईद और बकरीद की नमाज लोग भी अदा करने के लिए आया करते थे। जामा मस्जिद ने इस बार सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी थी। कमेटी के जावेद हयात साहब हमारे साथ में मौजूद। साहब, क्या रहा, आपने महज 5 लोगों ने नमाज अदा की, क्या आपने यहाँ से अपील की? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ईद उल फित्र की नमाज गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक अदा हुई थी, उसी तरह ईद उल अज़हा की नमाज भी गवर्नमेंट और WHO की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ही अदा की गई है। कितने लोग आए थे यहाँ? 5 लोग थे। इमाम साहब ने, इमाम मुफ्ती अमजद साहब जो यहाँ के खतीब व इमाम हैं, उन्होंने नमाज अदा की और नमाज अदा करवाने के बाद उन्होंने मुल्क, शहर और सूबे के लिए अमन व अमान की दुआएं मांगी और कोरोना से निजात के लिए बड़ी शिद्दत के साथ दुआएं मांगी गई। जी बिल्कुल। अभी जो ईद के लिए भी उन्होंने अपील की है कि बड़े ध्यान रखें ज़रूरतमंदों का और अपने पड़ोसियों के जज्बात का भी, किसी को कोई परेशानी नहीं। देखिए, लॉकडाउन फर्स्ट से ही जामा मस्जिद जो है वो अपने तौर के पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी उसके मुताबिक खुद भी अमल किया और लोगों से अपील भी करवाई कि किसी तरह से इस वायरस से बचा जाए। और आगे भी इंशाल्लाह जामा मस्जिद कमेटी और जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने आगे आके जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की थी, जो गाइडलाइन WHO की थी, उसको पूरी तरह फॉलो किया है और इंशाल्लाह आगे भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएंगी उसको जामा मस्जिद के तौर पर जहाँ की इस प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से उसकी पालना होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में बहुत आप देख सकते हैं कि इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं हुआ करती थी। वक्त से पहले ईद की नमाज हुई 7 बजे करीब और जो लोग हैं वो मुख्तसर से यहाँ पर जिनको इजाज़त दी गई और एक अपील की गई कि जब हम लोग एक उदाहरण पेश कर सकते हैं सभी के सामने, तो सभी को इसकी पालना करनी चाहिए। जामा मस्जिद में जब महज 5 लोग नमाज अदा कर रहे हैं और कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस की जो है कहीं से भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए और सबसे अहम ज़रूरी है जो सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ साथ सैनिटाइजेशन है, एक दूसरे के जो दूरियां बना करके रखनी है। जो भी गाइडलाइंस WHO ने, स्वास्थ्य महकमे ने दी है उसकी पालना करिए। उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से बचना इंसानियत का पहला फ़र्ज़ है और इस्लाम जो मज़हब है वो इंसानियत के मैसेज को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है वो प्यार और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा और तमाम लोग तमाम गाइडलाइंस की पालना करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
कुछ और अहम खबरें। मुल्क भर में आज से अनलॉक 3 शुरू हो चुका है। इसके सबब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जिस्मानी फासले का खास लिहाज रखते हुए ईद उल अज़हा की नमाजें अदा की गई, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के सख्त मौक़िफ़ की वजह से औरंगाबाद शहर की ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी। तमाम ईदगाहों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हमारे नुमाइंदे अज़हरुद्दीन ने ईदगाह छावनी का जायज़ा लिया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी आयद की है, जिसका असर हम साफ देख सकते हैं कि औरंगाबाद की सबसे क़दीम छावनी ईदगाह वीरान पड़ी है। यहाँ पर पिछले 400 साल से हर साल ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र की नमाज़ें होती थी, लेकिन कोरोना वबा के सबब इस मरतबा ये ईदगाह पूरी तरह से वीरान पड़ी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ सिर्फ पुलिस अहलकार और सिक्योरिटी गार्ड ही देखे जा सकते हैं, उनके अलावा ना मुसल्ली है और ना ही इमाम। ये अपने आप में तारीख़ का अलमिया कहा जा सकता है कि इबादत गाहें अल्लाह के बंदों से खाली है, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वबा के दौर में एहतियात बरतना ज़रूरी है। इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया ने ईदगाहों में और मसाजिद में नमाज पर पाबंदी आयद कर रखी, जिसका मुसलमानों ने बड़ी पाबंदी से अमल किया। ये ईदगाह की वीरानी इस बात का सबूत है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। आज ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के कई मुकामात में मौसम काफ़ी खुशगवार रहा। कई मुकामात पर तेज़ बारिश के साथ ईद के दिन की इब्तिदा हुई। फर्जंदान तौहीद ने कोरोना और लॉकडाउन के मद्देनज़र तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही ईद की नमाज अदा की। ईद की खुशियाँ महदूद ज़रूर रहीं, लेकिन मौसम ने आज के दिन की फ़िज़ा में चार चांद लगा दिए। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में इंतहाई सादगी के साथ नमाज ईद उल अज़हा का इनेकाद किया गया। ईदगाहों में इजाज़त न होने से शहर की तमाम मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। 6:20 से ही नमाजों की शुरुआत की गई। मोहल्लों की मसाजिद में भी नमाज अदा की गई। समाजी दूरी का खास ख्याल रखते हुए कई मसाजिद में 2-2, 3-3 जमातों का इनेकाद किया गया। नमाज से पहले ही उलमाए कराम ने मुसल्लियान को बगलगीर न होने और मुसाफा न करने की हिदायत की थी। मुसल्लियान से नमाज की अदायगी के साथ ही अपने घरों को जल्द लौटने की तलकीन की गई। ईद को खुशी के साथ मना रहे हैं, मगर साथ ही साथ इस महामारी के दौरान में, इस वबा के दौरान में जो भी साथी हमसे बिछड़ गए हैं, उनका भी हमें बेहद अफसोस है। और हम यहाँ पर जामे मस्जिद गुलबर्गा में ईद उल अज़हा की नमाज जो अदा किए हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, मास्क लगवाते हुए और तमाम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अदा किए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र एहसान अज़ीम है कि आज की ईद उल अज़हा ईद उल फ़ित्र के मुकाबले में आज़ादाना तौर पर हम अदा कर सके हैं, वरना ईद उल फ़ित्र की नमाज को हम मस्जिदों के अलावा घरों में अदा करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि हालात का तकाजा था। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना और सब एहतमाम से चले गए तो हमारी भलाई है। गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन पर है, वक्फ बोर्ड जो फॉलो अप करे, वो उस पर एतबार करके हम चले तो हमारा बहुत फ़ायदा है। और बहुत अच्छी तरह से ईद की नमाज भी हुई, सुबह ही 6:30 बजे हुई, फिर अगेन 7 बजे हुई एक नमाज, बहुत अच्छा दिखा। हमेशा 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक भी होती थी, आपको 6:30 को 7 बजे कुर्बानी भी करना है। और हालात वबा के हिसाब से क्या है, कई लोग इंतजाम तो महबस में भी अच्छे रहे और दूसरे मस्जिदों के साथ सब अच्छे हैं पूरे, और सोशल डिस्टेंस वगैरह बराबर रखे। ईदगाह में नमाज होती थी, ये साल जो है बच्चों को दूर रख के यहाँ जो है मस्जिदों में नमाज हो रही है। और जो है ना गए साल का खुश माहौल जो माहौल था वो माहौल ये साल नहीं है। ये वबा की वजह से जो है ना इतना जो है ना मुश्किल हो रही है और इंशाअल्लाह ये जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला है, दुआ की गई है। कर्नाटक की 7वीं जमात के निसाब से टीपू सुल्तान के सबक को हटाए जाने का मामला है कि थमता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से वजाहत के बावजूद एहतजाज जारी है। नया सवेरा संगठन की जानिब से आज गुलबर्गा DC ऑफिस पर एहतजाज किया गया।
पुराने निसाब को बहाल करने का मुतालबा किया गया। साबिक MLC अल्लम प्रभु पाटिल की क़यादत में किए गए एहतजाज में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्नाटक हुकूमत ने कल वाज़ेह किया कि अव्वल ता 10वीं जमात के निसाब में कटौती के फैसले से अभी आर्जी तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। मैं बीजेपी सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, तुम इसमें से नाम जो निकालना सोच रहे हैं वो निकालिए मत, क्योंकि ये इतिहास पढ़कर आप भी बड़े हुए हैं, ये इतिहास पढ़कर हम भी बड़े हुए हैं, और ये इतिहास जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये इतिहास रहने वाला है। कोई एक पेज में मिटाने से कोई मिटने वाला नहीं है। इससे पहले टीपू सुल्तान जयंती करने पर रोका जा रहा था, आज टीपू सुल्तान के चैप्टर ही निकाला जा रहा है, तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से जल्द आप ये जो भी चैप्टर निकालने की सोच रहे हैं बिल्कुल ना करें। अगर आप इसको फिर से हटाने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे तो हम हर वक्त आए दिन प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बीजेपी सरकार तारीखी किताबों से निसाब से हटाने की कोशिश कर रही है, जो इंतहाई नापाक है और जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश कर रही है। इस तरह एक ज़ाफ़रानी रंग एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ये कदम बढ़ा रही है बीजेपी सरकार, जिसका हम तहे दिल से और पूरी ताकत से इसका पुरजोर मुखालिफत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हमने ऐसा फ़ैसला लिया नहीं है। अगर ये फ़ैसला नहीं लिए हैं, जैसा कि आप ये जो बात बता रहे हैं ये वाक़ई सही है जो आप कह रहे हैं बात, तो ये खुशाइन बात है। हम आपकी इस बात को स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम चाहते हैं जैसे जो इतिहास के पन्नों में जो किताबों में जो दर्ज थी ये स्टोरी को बाकी रखें, यही हमारा मुतालिबा है। एक और अहम खबर, हैदराबाद के मासब टैंक के रहने वाले मोहम्मद कलाम लापता बताए जा रहे हैं। मोहम्मद कलाम 65 बरस के हैं। आखिरी मर्तबा उन्हें हैदराबाद के पुराने पुल पर देखा गया था और इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। मोहम्मद कलाम का आबाई मुकाम हज़ारीबाग झारखंड है। अगर किसी शख्स को मोहम्मद कलाम का कुछ भी पता चलता है तो वो 9032589152 पर रब्ता कर सकते हैं। एक और नंबर नोट कर लें, 9801363199। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।